बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन सभी को दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का मंगल में शुभारंभ करने के लिए। और अब देवी सजनों, इस महत्वपूर्ण संवाद जो हम इंडस्ट्री के साथ कर रहे हैं, जहां पर शासन और इंडस्ट्री साथ मिलकर आ रहे हैं एक मंच पर, उन सभी का स्वागत करने के लिए, इस संवाद को शुरू करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री संजय दुबे जी को, हमारे अपर मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय मेयर साहब, आदरणीय सांसद महोदय, माननीय विधायकगण, डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स, इंडस्ट्री लीडर्स and valued partners. It's my privilege and honor to welcome each one of you in Madhya Pradesh Tech Growth Conclave 2.0, a platform that is not merely an event but a movement to define India's next growth story. Few months back, when we were standing on this platform in the month of April, there were certain things that Honorable CM announced and decided. And we are happy that at that point of time, the focus was on technology, talent, and transformation. And today, we are going to share the story of how we have taken that foundation or a cornerstone as declared by Honorable Chief Minister in Madhya Pradesh. That vision is now articulated and is now driven by innovation, inclusion, and intent. In less than a year, this vision has translated into visible outcomes. It's not about talk anymore, it's now walking the talk, which is the focus of Madhya Pradesh. From new policies in semiconductor, in AVGC, in GCC, in drone manufacturing, and now very soon, satellite manufacturing and space technology, we are going from promises to the actual performance. As we gather here today, the landscape of Madhya Pradesh is transformative. Our cities are emerging as vibrant Tier 2 cities, which are the powerhouse, our youth as global professionals, and our governance model based on trust and transparency. And now as we move from Tech Growth 1.0 to Tech Growth 2.0, we are not just continuing this journey, but we are elevating it. विगत कुछ माहों में प्रदेश ने वह सब कर दिखाया है जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिकल्पना की थी। हमने जीआईएस के समय कुछ एमओयूज किए थे, कुछ अनुबंध किए थे, और आज उनको धरातल पर उतारने का समय है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में इस बात की जानकारी आपको देंगे कि मध्य प्रदेश ने विगत कुछ माहों में क्या कुछ कर दिखाया है। ये उनकी लीडरशिप, उनका विजन, उनके द्वारा निरंतर हम लोगों को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया, जिसके तहत हम ये सुनिश्चित कर सके हैं कि हम न केवल इंडस्ट्री को आमंत्रित करते हैं, बल्कि हम ये भी सुनिश्चित करते हैं कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। मध्य प्रदेश has seen immense progress in all the 4 policies that we have announced, whether it is GCC, semiconductors, drone, or even in the space technology. Today, the industry stalwarts are here. Either they are establishing some of their facilities, or they are announcing that they are going to start it very soon in Madhya Pradesh. So this is an upgrade from what it existed today. आज हम लगभग 90,000 से ज्यादा प्रतिभागी इंजीनियर्स ग्रेजुएट भोपाल और इंदौर के बीच में निकालते हैं। We have the best of the cyber security within the state government, and today we are also tying up with the Indian Army, the first state to have an MOU with Indian Army for cyber security. That is going to happen in Madhya Pradesh. The Space Tech Hub under the leadership of Honorable Chief Minister, उज्जैन में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर ज्यादा विस्तार से उसके बारे में बताएंगे। AVGC लैब हम लोग एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। So these are the cities, these are the talent, these are the information that we are able to gauge, to convert, and now it is for the youth to decide that whether they want to migrate out of Madhya Pradesh or they want to stay put. This is what the reverse brain drain effect में मौजूद है। सीधे रुक करते हैं। 11 करोड़ का निवेश और लगभग 1200 नए रोजगार सृजित होंगे। सबसे पहले टॉस जबलपुर और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं कि
आप इन्हें इनका आशय पत्र प्रदान करें। टॉस जबलपुर के प्रतिनिधि उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। साथ में इजी सॉफ्ट जबलपुर जिन्हें आज जिन 9 को यहाँ पर दिया जा रहा है। टॉस जबलपुर के प्रतिनिधि हमारे साथ पहले यहाँ पर मंच पर। ये एक ITS कंपनी है जिनके निवेश से लगभग 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके बाद इजी सॉफ्ट जबलपुर यह स्मार्ट मीटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तथा स्मार्ट और कनेक्टेड वर्ल्ड के लिए तकनीकी समाधान प्रदान करते हैं और इनके निवेश से करीबन 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ में ओमनेस बिल्ड केयर जबलपुर सभी के प्रतिनिधियों को मंच पर आमंत्रित करते हैं। इसके साथ फ्लैट ट्रेड ब्रोकिंग रिद्धि एंटरप्राइज इंदौर, असिस्ट क्लिक प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर, लॉजिमॉन्ग टेक्नोलॉजीज जबलपुर, MP ऑनलाइन भोपाल, मैमथ एग्जॉस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन सभी के प्रतिनिधियों को यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने आशय पत्र ग्रहण करें। इजी सॉफ्ट डिविजन ये स्मार्ट मीटर्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ओमनेस बिल्ड केयर जबलपुर ये एक ITS कंपनी है जो IT पार्क जबलपुर में अपना प्लांट स्थापित करेगी। फ्लैट ट्रेड ब्रोकिंग ये है भी एक ITS कंपनी है। रिद्धि एंटरप्राइज इंदौर ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण इकाई है। असिस्ट क्लिक प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर ये ITS कंपनी है। लॉजिमॉन्ग टेक्नोलॉजीज भी एक ITS कंपनी है। MP ऑनलाइन ये भोपाल में पहले से ही कार्यरत हैं और अब एक्सपैंड करने जा रहे हैं और गवर्नेंस सेवाओं को प्रदान करते हैं। मैमथ एग्जॉस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ESDM कंपनी है। इसके साथ साथ देवी सज्जनों एक और ऐतिहासिक क्षण जब उद्योगों और सरकार के बीच साझेदारी को और परिपक्व करते हुए 7 MOUs का माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आदान प्रदान किया जाएगा। इन MOU से प्रदेश के टेक्नोलॉजी सेक्टर में कुछ 800 करोड़ का निवेश और 10,500 लोगों को रोजगार मिलेगा और सभी जो समझौता ज्ञापन सरकार की तरफ से उनको एक्सचेंज करेंगे श्री संजय दुबे जी हमारे ACS। तो सबसे पहला MOU सोमवेदा एंटरप्राइजेस के साथ श्री सोमेश चौधरी जी को फाउंडर, उनसे निवेदन है कि वे मंच के सामने आएं और ये MOU को एक्सचेंज करें। कंपनी मध्य प्रदेश में लगभग 800 करोड़ के निवेश के साथ एक फ्लोट जोन सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रहा है। सोमेश चौधरी जी उन्हें आमंत्रित करते हैं। उनके साथ ये MOU अब एक्सचेंज किया जाएगा। ये को फाउंडर हैं। अगला DAVV IT पार्क के साथ है। उनके भी प्रतिनिधि मंच के सामने ही आ जाए। तो फ्लोट जोन सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये स्थापित करेंगे और इस इकाई से लगभग 500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा। DAVV IT पार्क इंदौर, यहां से डॉक्टर राकेश सिंघई वाइस चांसलर। DAVV द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के अंतर्गत एक IT पार्क विकसित किया जाने की योजना है जो प्रदेश के तकनीकी निवेश और नवाचार को नई दिशा देगी। अगला MOU हमारा ANSR प्लस ग्लोबल के साथ और ये प्रदेश में यहाँ पर विक्रम आहूजा जी के साथ को फाउंडर। प्रदेश में GCCs की स्थापना को सशक्त करने और नए GCC पार्क के विकास हेतु ANSR प्लस द्वारा सहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है और लगभग 10,000 व्यक्तियों को ये रोजगार प्रदान करेंगे। अगला हमारा MOU रहेगा GDAI के साथ गेम डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। श्री हेमंत कुमार हेड ऑफ पॉलिसी उन्हें आमंत्रित करते हैं। MP SCDC और GDI के संयुक्त सहयोग से मध्य प्रदेश में गेमिंग और गेम डेवलपमेंट इकोसिस्टम के विकास का प्रस्ताव रखा जा रहा है। ये पहल राज्य में नई तकनीकी प्रतिभाओं, स्टार्टअप्स और डिजिटल रचनात्मकता को बढ़ावा देगी। साथ साथ डिजिटल इनोवेशन के मार्ग पर भी हम अग्रसर होंगे। टाई ग्लोबल के साथ हमारा अगला MOU डॉक्टर शीनू झावत प्रेसिडेंट। इस MOU के माध्यम से राज्य में स्टार्टअप नवाचार एवं तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा एवं उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। अगला MOU हमारा मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MCTE मऊ के साथ है और मेजर जनरल गौतम महाजन
मंच पर हमारे साथ भारतीय सेना और मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के बीच हुए इस MOU के अंतर्गत साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GIS, डेटा एनालिटिक्स, ड्रोन, सेमीकंडक्टर तथा क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान। और अब कोड योगी फाउंडेशन, उनके साथ भी एक MOU, उनके प्रतिनिधि उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और IIT दिल्ली द्वारा स्थापित कोड योगी के बीच MOU के अंतर्गत टेक फॉर सोशल गुड प्रोग्राम लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी स्कूलों, ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों के विद्यार्थियों को कोडिंग और टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रतिनिधि को भी एक बार निवेदन है कि आप मंच पर आएं और ये MOU जो आपके साथ जो साइन किया गया है उसका आदान प्रदान किया जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है। GCC की स्थापना को सशक्त करने हेतु इनके द्वारा नए GCC पार्क के विकास किया जाएगा। यह सहयोग का हम स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ देवी सज्जनों एक विशेष एग्रीमेंट भी अब एक्सचेंज किया जाएगा MPSCDC और आइसर कोड के साथ। डॉक्टर वैभव जैन जी को आमंत्रित करते हैं मंच पर। MPSCDC और आइसर कोड के साथ ये एग्रीमेंट ड्रोन इकोसिस्टम को मध्य प्रदेश में विकसित करने हेतु यह विशेष एग्रीमेंट अब एक्सचेंज किया जा रहा है आइसर कोड और MPSCDC के बीच में। डॉक्टर वैभव जैन, और इसके साथ देवी सज्जनों LNT एजुटेक द्वारा 5 कॉलेजेस के विद्यार्थियों को AI आधारित टेक्निकल कोर्सेज में प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये कोर्स 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इस कॉलेज के जो विद्यार्थी हमारे साथ हैं और उनके प्रतिनिधि, उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। ये 5 कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हमारे साथ मंच पर आ रहे हैं, LNCT भोपाल, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बंसल ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग, सेज यूनिवर्सिटी और IES यूनिवर्सिटी। ये इनका कोर्स 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। LNT एजुटेक द्वारा ये कोर्स AI आधारित टेक्निकल कोर्सेज में इन कॉलेजेस में ये कोर्स शुरू किया जाएगा और बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा विशेष रूप से AI के क्षेत्र में और एक फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल्स को तैयार करते हुए ये कॉलेजेस LNT एजुटेक के माध्यम से। ये कॉलेजेस LNCT भोपाल, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, बंसल ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग, सेज यूनिवर्सिटी और IES यूनिवर्सिटी। और अब देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश में तकनीकी नवाचार का एक नया अध्याय शुरू करते हुए आज 3 नए लॉन्चेस किए जाएंगे। सबसे पहले सीसो पोर्टल सरकारी विभागों में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु ये पोर्टल एक सुरक्षित केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा जो रियल टाइम मॉनिटरिंग, थ्रेट इंटेलिजेंस और अनुपालन प्रबंधन को सक्षम बनाता है। इस पोर्टल के बारे में विशेष जानकारी के लिए आइए इसकी तरफ देखते हैं एक फिल्म। नमस्कार भारत। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एवं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश टेक युग की नई परिभाषा गढ़ता जा रहा है। सुरक्षित भारत की नींव को मजबूत बनाते हुए मध्य प्रदेश सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्यरत MP-CERT मध्य प्रदेश कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम राज्य में डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। इसी दिशा में अब एक और सशक्त पहल करते हुए MP-CERT एवं मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE के संयुक्त प्रयास से राज्य के सभी शासकीय विभागों और जिलों के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर यानी CISO के लिए सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसका शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा किया जा रहा है।
ये सीसो पोर्टल राज्य के सभी विभागों और जिलों के लिए एक सेंट्रलाइज्ड साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो पॉलिसी कंप्लायंस, रिस्क असेसमेंट और साइबर इंसिडेंट मैनेजमेंट को एकीकृत रूप से सक्षम बनाता है। सीसो पोर्टल विभागों की सुरक्षा तैयारी को सशक्त बनाने के लिए कई अहम मॉड्यूल प्रदान करता है, जैसे डिपार्टमेंटल असेसमेंट। इसके माध्यम से हर विभाग की साइबर सुरक्षा स्थिति का मूल्यांकन होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट विभागीय हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क संसाधनों का अद्यतन रिकॉर्ड बनाए रखता है। बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस BIA किसी भी साइबर घटना की स्थिति में त्वरित रूप से ये आकलन करता है कि कौन से सिस्टम्स या सेवाएं सबसे अधिक प्रभावित होंगी। वहीं वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल MP सर्ट द्वारा पहचानी गई कमजोरियों की ट्रैकिंग, समाधान और निगरानी को रियल टाइम में सक्षम बनाता है, जिससे विभागों की साइबर सुरक्षा तत्परता और मजबूत होती है। मध्य प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए अब तक 187 सीसोज नियुक्त किए जा चुके हैं, जिनमें 132 विभागीय स्तर, डिपार्टमेंटल लेवल और 55 जिला स्तर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के सीसोज शामिल हैं, जिन्होंने इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। ये पोर्टल सभी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स सीसोज को नीति निर्माण, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, साइबर घटना प्रबंधन, साइबर इंसिडेंट मैनेजमेंट और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एक संकल्पित दिशा प्रदान करता है। सीसो पोर्टल सभी विभागों की सुरक्षा स्थिति का अवलोकन, रियल टाइम इंसिडेंट रिपोर्टिंग और निवारण उपाय, अलर्ट सिस्टम, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, ज्ञान साझा करने के प्लेटफॉर्म के साथ MP सर्ट के प्रयासों को और अधिक मजबूत करते हुए राज्य को एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य की ओर आगे बढ़ाता है। सुरक्षा में एकजुटता, शासन में विश्वास, यही है मध्य प्रदेश की साइबर सुरक्षा। सीसो पोर्टल, अ सिक्योर फ्यूचर फॉर डिजिटल मध्य प्रदेश। आप भी सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। तो साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में सीसोस को सशक्त बनाता हुआ ये पोर्टल। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं, पुनः आप रिमोट का बटन दबाकर सीसो पोर्टल को लॉन्च करें। अब देवी सजना आगे बढ़ते हुए ड्रोन डेटा रिपोजिटरी DDR को लॉन्च किया जाएगा। डिजिटल मध्य प्रदेश की दिशा में ये पहल भूमि प्रबंधन, शहरी नियोजन, वनों की निगरानी, सिंचाई और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में ड्रोन डेटा के उपयोग से विकास को नई गति प्रदान करेगी। इसके बारे में और जानकारी के लिए एक सबसे पहले फिल्म। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के दूरदर्शी विजन के अनुरूप राज्य ने तकनीक के क्षेत्र में एक नई उड़ान भरी है, ड्रोन एज अ सर्विस के रूप में। इसी दिशा में विकसित हुआ है ड्रोन डेटा रिपोजिटरी DDR, जो शासन को नई ऊंचाइयों और पारदर्शिता की ओर अग्रसर कर रहा है। पहले जहां विभिन्न विभाग अपने अपने स्तर पर ड्रोन सर्वे और डेटा प्रोसेसिंग कराते थे, जिससे डेटा में एक रूपता की कमी रहती थी और विभागों के बीच समन्वय नहीं बन पाता था, अब DDR उन सभी जानकारियों को एक एकीकृत मंच पर जोड़कर राज्य के हर निर्णय को डेटा ड्रिवन और स्मार्ट बनाएगा। DDR सभी विभागों को सटीक और विश्वसनीय ड्रोन डेटा प्रदान करेगा, जिससे योजनाओं और परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग और बेहतर निर्णय लेना अब और भी आसान हो जाएगा। कृषि, सिंचाई, शहरी विकास, आपदा प्रबंधन या प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़ा कोई भी कार्य हो, फसल स्वास्थ्य, जल स्रोत प्रबंधन, 3D स्मार्ट सिटी मॉडल, वॉल्यूमेट्रिक सर्वे, बाढ़ मानचित्रण, नुकसान आकलन या कानून व्यवस्था जैसी जरूरतों के लिए सभी प्रकार का ड्रोन डेटा अब एक ही रिपोजिटरी से तुरंत प्राप्त किया जा सकेगा। DDR का मुख्य उद्देश्य है राज्य के सभी विभागों द्वारा किए गए ड्रोन सर्वे को एक स्थान पर संकलित करना, ताकि जरूरत पड़ने पर यह डेटा किसी भी विभाग तक तुरंत पहुंचाया जा सके। ड्रोन डेटा रिपोजिटरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ड्रोन टेक्नोलॉजी, डेटा और निर्णय तीनों को एक साथ जोड़कर स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में मध्य प्रदेश को नई दिशा प्रदान करेगा। यहाँ पर सभी के टेबल्स पर DDR के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पर एक विशेष पुस्तिका भी रखी गई है। आपसे निवेदन है इसका विमोचन करने के लिए। रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। महाकाल, जिनकी असीम कृपा हमारे सबके बीच में है। इस मंच पर एक शख्सियत और है, वैसे तो और भी है,
लेकिन हमने ब्रह्मोस का धमाका पाकिस्तान के माध्यम से दुनिया को दिखाया था और हम अपने उस ब्रह्मोस की इस पूरी यात्रा में शिव भानु पिल्लई जी के बाद इसको और विकसित करने में डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी भी मौजूद है। जोरदार अभिनंदन हमारे वैज्ञानिक सुधीर मिश्रा जी, जो मध्य प्रदेश के भी गौरव हैं और इस नई टेक्नोलॉजी माननीय कुलपति कुलगुरु जी बैठे हैं, आपका भी अभिनंदन। हमारे राजीव दीक्षित जी भी हैं जो अटल सुशासन संस्थान के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैं यद्यपि कितने प्रकार से इसको कैसे कैसे ढंग से हमने इस पूरा कार्यक्रम का संयोजन किया, जैसे बगीचे के अंदर विविध प्रकार के अलग अलग वनस्पतियों के उनकी अपनी महत्ता होती है और जो सब मिलकर गुलदस्ता बनता फूलों का, ऐसा संयोजन आपने किया है। देश के स्वनाम धन्य एक से बढ़कर एक इस लाइन के अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी के लीडर्स, उद्योगपति, इन्वेस्टर्स, स्टूडेंट और भविष्य की संभावनाओं के साथ आज के इस दौर में हमारी सेना के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश का मान बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। देश के इतने सारे राज्यों में से मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है जिसने अपनी ये टेक्नोलॉजी के आधार पर सेना के साथ एमओयू किया है। मैं बाबा महाकाल के साथ उनके पुत्र खजराना में विराजे गणेश जी को भी स्मरण कर रहा हूं, जिनके कारण से अपने मंगल मूर्ति की कृपा से कॉन्क्लेव सफल हो रहा है और कितनी तेजी गति से चल रहा है। अभी हमारा इसी साल 2025 का 01 से लेकर 02 तक इतनी तेज गति से बढ़ा है। ये एक आयोजन नहीं है, वास्तव में मध्य प्रदेश के डिजिटल भविष्य का ये घोषणा पत्र है। मैं बधाई देना चाहूंगा इस नाते से भी। ये कॉन्क्लेव विकसित भारत 2047 के लिए मध्य प्रदेश को तैयार करेगा और भविष्य के टेक्नोलॉजी और एआई ड्रिवेन ही होगा। मेरी अपनी ओर से शुभकामना इस मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में। मध्य प्रदेश में पूरा संभावना का प्रदेश है, लेकिन महालक्ष्मी जहाँ विराजे वो तो इंदौर ही हो सकता है। जोरदार अभिनंदन इस नाते से भी करें, जहां पर ब्रेन भी है, ड्रेन भी है और अपनी सभी प्रकार की संभावना भी है। मैं मान के चलता हूं जिस प्रकार से यहाँ स्मार्टनेस और स्टार्टअप के लिए यह इंदौर की अपनी पहचान बनी है। अब हमारा वो सुपर कॉरिडोर, वो तो ऐसा लग रहा है कि बेंगलोर और सीधे अमेरिका के उस कौन सी वैली बोलते हैं, ऐसे लग रहा सिलिकॉन वैली की काफी है, लेकिन समय कैसा तेज गति से बदल रहा है इसका भी एहसास हो रहा है। हमारे सामान्य विश्वविद्यालय भी अब अपने खुद के मार्ग प्रशस्त करते हुए इस वर्तमान के दौर में डिजिटल युग में अलग ढंग से जुड़ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के लिए भी। जब हमने अपनी पॉलिसियों के माध्यम से दरवाजे खोले तो हमारे महाविद्यालय, हमारी यूनिवर्सिटियां हर प्रकार से, हर तरफ से आगे बढ़ने के अवसर खोजने के लिए, तो गायकवाड़ जी ने भी अपनी बात सुनाई। उनके अपने जीवन के संघर्ष में जो बीवीजी ग्रुप के माध्यम से उन्होंने अपना संकल्प बताया, तो मैं उनका भी समाधान और उनके उस हौसले की हौसला अफजाई भी करता हूं। और जैसे हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में भारत की आईटी सिटी इंदौर भी अब साइबराबाद और बेंगलुरु की तरह आगे बढ़ने के लिए पंख फैला के आगे बढ़ रही है। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। और एक केवल इंदौर नहीं, जब हम इस तरफ देख रहे हैं तो जबलपुर ने भी उसी दिशा में कदम बढ़ाया। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, एक के बाद एक सारे नगर इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमारे लिए नया अवसर भी ला रहे हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने जो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने कदम बढ़ाए, जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। पूरी दुनिया भौचक की रह गई जब ऑपरेशन सिंदूर के लिए नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हम भी थोड़े, अपन भी सब उसी में से हैं। जब भारत पाकिस्तान से युद्ध का मामला है तो सबसे पहले बॉर्डर पे ध्यान जाता है। लोग अपने जो बॉर्डर पे बैठे हुए सारे लोग अपने दरवाजे खिड़की सहित ब्लैकआउट और पता नहीं क्या क्या तैयारी करके बैठे। युद्ध पूरा खत्म हो गया, उनको पता ही नहीं चल रहा युद्ध भी हो गया क्या। हमने घर में जाके मार के आ गए। जोरदार अभिनंदन करो। ये सामने वाले दुश्मन की पलक झपकी नहीं, उसके पहले हमारा काम तमाम हो गया। ये ऐसे डर बैठा सच में। वो जब हमको लगा कि सुबह सुबह पाकिस्तान के लोग किसी और बड़े कारण से बैठे, तो लोग समझे कि ये खाली
ऐसा लग रहा है, लेकिन उनको मार इतनी बुरी पड़ी थी कि उनका इसके अलावा कोई रास्ता बचा ना था। उनके और उनके आका सब आ गए मैदान में, यहां से लेके वहां तक। हमारी सेना के लिए जोरदार ताली बजाओ, क्या हिसाब चूकता करा है। हमको तो बहुत दिन तक तो वो ऐसा लग रहा था जोधपुर के ड्रोन से ही काम चला रहे हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं, लेकिन उनके ड्रोन भी मार के गिराए और ड्रोन से ज्यादा उनके अपने परमाणु रिएक्टर तक की जो मार की, ये है यशस्वी प्रधानमंत्री की 1 2 3। एक बार मारा थल सेना के माध्यम से, घर में घुस के मारा। जब पहली बार बॉर्डर के बाहर जाकर के दुश्मन को उनके घर के अंदर पूरा अपना काम तमाम हो गया और अंदर वालों को मालूम ही नहीं पड़ा और हमारे आदमी हमारे पास वापस आ गए। वो धमाके की आवाज से बहुत दिन तक तो कुछ भी बोलते रहे, लेकिन दूसरी बार हवा में जाके मारा और हवा में जाकर मारने के बाद भी अभिनंदन की मूछ और उसका तरीका देख के क्या आनंद आता था। जोरदार ताली बजाओ, हमारा आदमी जाकर के ये जो कमाल करता है। और अब की बार तो टेक्नोलॉजी के बलबूते पर भारत ने जो ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, जिसके लिए मैंने हमारे मिश्रा जी को भी याद किया, लेकिन आज के समय में वास्तव में हमारे पास मार्केट भी है, मैन पावर भी है, मोबिलिटी भी है, माइंडसेट भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी है। जोरदार अभिनंदन करें। आज के समय की दृष्टि से सारी चीजों में से हमारे पास सबसे बड़ा मैन पावर हमारा अपना बहुत बड़ा हथियार है और इसीलिए दुनिया के कई देश भले आगे होंगे, लेकिन जर्मनी हो, जापान हो, ताइवान हो, कई सारे लोग हमारी इस टेक्नोलॉजी के साथ मैन पावर की तरफ भी देख रहे हैं। हमको मालूम है कि हमारे पास केवल तकनीकी रूप से दक्ष करने वाले अगर युवाओं के लिए मार्ग बनेगा तो भविष्य की संभावना में भारत बहुत तेज गति से चलेगा। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन अभियानों से तो वास्तव में डिजिटल और स्वदेशी दोनों आंदोलनों को बल मिल रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले पे घोषणा की, ये साल बड़े बदलावों का है, बड़े रिफॉर्म्स का है, इसीलिए क्रांतिकारी दृष्टि से हमको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस सरकार के माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से साइंस टेक्नोलॉजी ने सब तरह से कदम बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अधिकारियों के लिए भी। बदलते दौर में मध्य प्रदेश टेक 1 से 2 की यात्रा में जिस तेज गति से हम बढ़े, हमने तो अभी अप्रैल में ये टेक 1 का बीज बोया था, लेकिन आज ही फल लग रहा है। ये कितनी तेज गति से बढ़ रहा है कि हमारे जिनके हाथों से हमने अपने भूमि पूजन किए थे, जिन हाथों से, और उन्होंने अपने न केवल संस्थान का प्रारंभ किया है बल्कि आगे बढ़ने का संकल्प भी बताया है। मैं जब आज आपकी तरफ से देख रहा हूं तो आज ये हमारे अपने 2025 फरवरी में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हुई थी, तब हमने अपने टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में 99 निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए थे, जिसके माध्यम से 34,000 करोड़ के निवेश के अभिप्राय, 2 लाख लोगों के रोजगार की हमने बात उस समय कही थी। बीते 8 महीने में हमारी सरकार ने हर नीति को नतीजे में बदला है और आज 6,000 करोड़ का निवेश और 50,000 लोग रोजगार पा चुके जमीन के ऊपर। जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश। और अब तक 27 प्रोजेक्ट जमीन पे उतरे हैं, 8 प्रोजेक्ट साइट विजिट के स्तर पर हैं। टेक ग्रोथ 2 में हमने आज पूरा, अभी मैं प्रेस में बताऊंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी दे सकता हूं कि जितने प्रकार से हमने ये अपनी छलांग लगाने का संकल्प लिया। आज 22 नई तकनीक और औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन हुआ, कुल 257 करोड़ का निवेश और 2,125 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। 4 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया, जिसमें 1,346 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इसमें 21,150 लोगों को रोजगार की संभावना रहने वाली है। 8 से अधिक निवेशकों के साथ 1-to-1 बैठक हुई है। कई सारे स्वनाम धन्य में नाम लूंगा तो बाकी के साथ अन्याय हो जाएगा। बड़ी संख्या में यह सारे लोग हैं। कुल मिलाकर के जिस प्रकार का ये आयोजन किया गया है, मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश हमारे इस क्षेत्र के सारे निवेशकों के लिए हृदय से आपका स्वागत भी करता है, अभिनंदन भी करता है। और आइए, मध्य प्रदेश आपका इंतजार कर रहा है। एक घर आपका वहां होगा जहां आप काम कर रहे हैं, दूसरा घर आपको पुकार रहा है। हमारे साथ जुड़े और आप अपने सपनों को पंख लेकर आगे जहां तक जाना चाहे वहां तक उड़े। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विज्ञान और तकनीक के माध्यम से एक नए स्वर्णिम अध्याय की दहलीज पर खड़ा हुआ मध्य प्रदेश की हमारे सामने सुंदर तस्वीर रखने का और सभी को शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के अंत में श्री आशीष वशिष्ठ जी को आमंत्रित करते हैं, प्रबंध निदेशक NTSEDC, अपना धन्यवाद प्रस्ताव रखने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री रहा हूँ इसको, ऐसे इनाल तो मैंने उसमें बोल ही दिया है, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। तो सब मिलाकर 15,896 करोड़ का लगभग 16,000 करोड़ हो गया। अब 896 में क्या जोड़ना है? 64,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं मान के चलता हूं कि ये जो हमारी 1-to-1 से लेकर जिस प्रकार से इसमें अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर आए, निवेशक आए और उनसे हमारी बात हुई, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि 4 माह से कम समय में हमारी ये दूसरी टेक टू एनक्लेव मान के चलो कि जिस ढंग से उन लोगों ने रिस्पांस दिया है, ये हमारी सफलता भी है और अपने मध्य प्रदेश के प्रति लोगों का विश्वास भी है। इस नाते से मैं सारे हमारे मीडिया के बंधुओं से भी कहना चाहूंगा कि आज का समय बदलते दौर में मध्य प्रदेश का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने हर क्षेत्र में बढ़ने का संकल्प लिया है, आपके सबके सहयोग से उस दिशा में लगातार संकल्प की पूर्ति हो रही है। बाबा महाकाल और खजराना वाले गणेश जी की कृपा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में ऐसी और मिलेंगे। एक आध दो प्रश्न कोई मन में हो तो इसी मुद्दे से जुड़े हुए, दाएं बाएं ऊपर नीचे करोगे आईटी पे बात करेंगे। ये अच्छी बात है, ज्वेल जी ने अच्छा प्रश्न किया है कि ये हमारे राज्य ने पहली बार इंडस्ट्री में एक साथ अलग अलग 4 सेक्टर में पुरस्कार पाए। आमतौर पर ये कभी हमारे लिए बड़ा बहुत मुश्किल जाता था और 2002 के पहले तो संभव ही नहीं था, लेकिन 2022 में एक पुरस्कार मिला था। लेकिन अब जो हमने उद्योग रोजगार वर्ष जो घोषित किया है, ये 4 पुरस्कार अलग अलग क्षेत्र में, और ये वही बात है जिसके लिए हम सबसे कहते हैं कि हमारी पॉलिसियां हमने सरलीकृत की है। अपने सारे व्यवसाय को सरल बनाने के लिए कार्यालय में काम करने की पद्धति भी बदली है। लोगों के साथ जो कमिटमेंट करते हैं उसका पालन भी करते हैं, और यही कारण है कि देश भर में मध्य प्रदेश के प्रति ये आकर्षक माहौल भी बना हुआ है। और अब भारत सरकार ने पुरस्कार से नवाज करके हमारी उस बात की पुष्टि कर दी। सर, उज्जैन खगोल विज्ञान का और यही कारण है, देखिए ये अब उज्जैन नहीं है, वो तो इंदौर का मेट्रोपॉलिटन शहर ही है। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, तो मेट्रोपॉलिटन को लेकर के जो पूरा प्लान बना है, तो हमारा जो वर्तमान की दशा में खास करके डीप टेक टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बड़ा सेंटर बनाने का एक संकल्प भी हुआ है, और साइंस सिटी भी बन रही है। साइंस सिटी अभी हमारे प्रदेश के अंदर इसकी काफी स्कोप भी था, तो आपने देखा होगा अभी प्लेनेटोरियम और काफी चीजें तो वहां काम कर रही है। लेकिन आने वाले समय में स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के, खगोल विज्ञान को लेकर के, ऑब्जर्वेटरी तो राजा जयसिंह के समय से थी, तो प्राचीन ज्ञान का भी और वर्तमान के विज्ञान का भी, दोनों का समायोजन करते हुए रिसर्च करने के लिए भी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ से हम स्टैंडर्ड टाइम की बात भी अगर करते हैं तो स्टैंडर्ड टाइम के लिए जो हमारी जीपीएस से भौगोलिक भूमिका अगर हमारे प्रदेश की देखते हैं तो ये पृथ्वी के मध्य में भी आता है। तो वैदिक घड़ी के लिए आईआईटी के एक अच्छे स्टूडेंट ने जो हमारे लिए वैदिक घड़ी बनाई थी, उस वैदिक घड़ी का लोकार्पण भी कराया माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। वैदिक घड़ी का विक्रमादित्य वैदिक काल के ऐप भी दिए हैं जो स्थानीय समय भी बताते हैं और वैदिक समय से भी जोड़ के चलते हैं, और ये समय गणना का वो केंद्र भी बताते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे लिए प्राचीन काल के समय के वैदिक समय की गणना की अगर बात करेंगे तो वो 15 मुहूर्त दिन के, 15 मुहूर्त रात के।
तो जो अपना ये वर्तमान की साइंस की दृष्टि से 60 मिनट का 1 घंटा होता है, मूलतः हमारे मुहूर्त से वो 48 मिनट का होता है और 48 मिनट से कैलकुलेट कराते हैं तो ये बराबरी से रात और दिन की हिसाब लग जाते हैं। तो ये जो अभी वर्तमान में 60 मिनट से जोड़ेंगे तो 12 घंटे तो दिन के और फिर 6 घंटे रात के, तो 12 बजे से सुबह 6 बजे तक मैदान खाली है। रात की 12 से 6 में कहाँ गिनती करेंगे? तो जैसे पूरा दिन ऐसी पूरी रात है। जब हम अपने चक्री क्रम से ग्रहों की गिनती अगर अपने गणना करने जाएंगे तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक का पूरा समय, तो सूर्योदय से सूर्योदय तक, अगले सूर्योदय तक, ये दोनों 30 मुहूर्त होकर के खगोल गणना का हमारी प्राचीन विज्ञान है। और उसी आधार पर आज हमारे प्राचीन वैदिक गणित के हिसाब से ये जो विभिन्न ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो वो तुरंत कैलकुलेशन आ जाता है। ये उसी की विशेषता है। इसलिए वैदिक गणित की दृष्टि से भी इसको हमने अपने सिलेबस में भी लिया है और आधुनिक साइंस की दृष्टि से भी अब लोग बहुत तेजी से इसको अपना भी रहे। मुख्यमंत्री जी, डिफेंस सेक्टर की ओर से मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि आज आर्मी ऑफिशियल्स के साथ में 2 MOU साइन हुए हैं, जो कि प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही। ये आर्मी अफसर के साथ में और आर्मी के भी वो जो विंग, जिस विंग पे हम साइबर की संभावना देखते हैं, उससे जुड़ करके हमारे साइंस टेक्नोलॉजी विभाग का ये MOU हुआ है। ये हमारी तेज गति से चलने वाली गति भी है। और आप देखो, एक और बड़ी बात हुई है, डिजिटली आमतौर पर जो हमने आज वो जिसमें और वो जो हमने मैपिंग को एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है ड्रोन डेटा रिपोजिटरी। जैसे कि आपके पिक्चर का फॉर्मेट होता है, JPEG फॉर्मेट है, JP फॉर्मेट है, ऐसे कोई स्टैंडर्ड्स अभी तक किसी भी देश में नहीं बने हैं, देश के किसी राज्य में नहीं बने। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो इस स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स को बनाया है, उसके स्टैंडर्ड्स करा है। और अब ये इमेजेस चाहे आपने कैप्चर की हो, चाहे एक्स विभाग ने की हो या दूसरे ने, अगर उसी फॉर्मेट में रहेंगी तो एक्सचेंज हो सकेंगी। ये स्टैंडर्ड्स अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अडॉप्ट करने वाली है। हमारे पूरे कंसल्टेशंस हुए हैं, तो पहली बार ऐसा है कि ड्रोन के जो इमेज ली जा रही हैं उसकी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर और उसके स्टैंडर्ड्स यहां पर एस्टैब्लिश किए गए हैं, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया है विमोचन के। ड्रोन डेटा रिपोजिटरीज का नाम है। ड्रोन से जितनी भी डेटा इकट्ठा किया जाएगा उसका एक स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो आप जो एक्सचेंज करते हो, जैसे PDF फॉर्मेट को आप भेज देते हो एक जगह से दूसरी जगह, आपको चेक नहीं करना पड़ता कि आपका फोन में पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, वैसा स्टैंडर्ड्स यहां पर बने हैं। तो इमेजेस को शिफ्ट करना, इमेजेस को सिलेक्ट करना, इमेजेस को देखना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, ये सब पॉसिबल हो पाएगा अगर इस स्टैंडर्ड्स में करें। ये स्पेस टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी बड़ा अचीवमेंट आज हमारा हुआ है और हम इस पे काम भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में स्पेस पॉलिसी भी हमारी ला रहे हैं। और भविष्य की दृष्टि से जैसे आज हमने अपने 3-4 MOU भी किए, 3-4 हमारे पास, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले बड़े सज्जन सुब्बा राव जी, भविष्य में दृष्टि से वो हमसे जुड़ करके काम करना चाह रहे हैं। इसी में ड्रोन टेक्नोलॉजी की तो बात अपनी आई है। इसके अलावा भी अलग अलग साइंस टेक्नोलॉजी की आधुनिक से आधुनिकतम चीजों में हमारा राज्य आगे बढ़ करके उनके साथ व्यापार भी करना चाहता है और नई टेक्नोलॉजी में बराबरी का भागीदार भी बनना चाहता है। और जिस प्रकार का ये, अगर आप पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत के अंदर हमारे अपने उत्तर भारत के सभी राज्यों में अभी बहुत स्कोप है, जिसमें मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बाकी राज्यों की दृष्टि से मैं किसी पे टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन मान के चलो कि जिस प्रकार का साउथ में इसरो ने अपना एक अपनी मुकाम बनाया है, भविष्य की दृष्टि से पूरे देश में बड़ी संभावना है और हम उस पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी 7.5 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है।